اس میں کسی کو کچھ کہنا تو نہیں ہے۔ تو وہ آپ کیا فرما رہے تھے کہ جس طرح سے وہ آدمی خاموش ہے تو اس سے صاف لگتا ہے کہ ہاں، اس سے صاف لگتا ہے کہ وہ یعنی فرضی معاملہ چل رہا ہے، فرضی واقعہ ہے۔ مطلب فرضی واقعہ کا مطلب یہ کہ یہ دونوں آئے ہیں یا انسان ہیں، تو گویا ایک معاملہ اس طرح سے بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر وہ شخص ہوتا تو بولتا نا، اگر واقعی اس طرح کا واقعی کوئی معاملہ ہوا ہوتا وہ بولتا، بحث کرتا، لیکن ایک دم خاموش رہا۔ ایسا آدمی جو اتنا مالدار ہے، 1 اور 99 کا فرق ہے، اور یہ خود کہہ بھی رہا ہے کہ الزنی فی الخطاب، وہ چپ ہے۔ تو یہ گویا ایک معاملہ ان کے سامنے پیش کیا گیا فرضی مقدمے کی صورت میں، اور اس سے ان کو احساس ہو گیا۔ اگر حضرت داؤد نے کسی کی جائیداد سے، جیسے بادشاہوں وغیرہ کو حکومت کو ضرورت پڑتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز چاہی ہو اور وہ مناسب نہ ہو، دوسرا متبادل ہو، تو قوم کے 2 آدمی اس طرح سے آ گئے ہوں اور ان کو گویا کہ فرضی مقدمے کی صورت میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے تو زیادہ یہ لگتا ہے کہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں انسانی شکل میں، اور اس طرح سے ان کو وہ کیا ہے۔ قوم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، قوم کے 2 فرد۔ بھائی اس طرح سے دیوار پھاند کر آنا سلیمان السلام کا مضبوط وہ ہے، اور اس میں سے آنا عام انسانوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ دیوار کھان کے آنا ان کو تعجب میں ڈالنا مقصد تھا کیا؟ مطلب یہ کہ اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ ڈر گئے، تعجب میں ڈالنا نہیں، فرشتے ڈائریکٹ آ گئے، یا وہ انسان بھی ہیں تو پہرداروں نے آنے نہیں دیا ہوگا۔ وہ وقت ہے داؤد کے لوگوں سے ملاقات کرنی ہوگا، ہر کام کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے نا۔ عام لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنا، نزاعات کا فیصلہ کرنا، عام لوگوں کی بات سننا، اس کا کچھ وقت ہوگا۔ یہ وقت ان کی عبادت کا تھا، اس وقت جانا مناسب نہیں تھا، پہرے داروں نے آنے نہیں دیا ہوگا۔ لیکن یہ جس طرح سے آئے ہیں اور گفتگو میں جو انداز اختیار کیا ہے کہ فاحکم بیننا بالحق ولا تشتت، ایک تو دیوار پھاند کر آنا، یہ خود عجیب بات ہے۔ دوسرے جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں نصیحت کر رہے ہیں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے، ہمیں ہماری سیدھے راستے کی رہنمائی کیجئے، یہ سب تقریر کر رہے ہیں۔ یہ سب سے ظاہر ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہو رہا ہے اور فرشتے ہیں، تو دونوں کا امکان ہے، چاہے انسان بھی، قوم کے کچھ شریف لوگوں نے معاملہ دیکھا ہو تو اس طرح سے وہ آ گئے ہوں۔ جی اچھا ایک بات سوال لوگ ہے ہاں یہاں پر داؤد علیہ السلام سجدہ کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہم کیوں کرتے ہیں؟ داؤد السلام نے سجدہ کیا، ایک نبی نے سجدہ کیا ہے تو ہم بھی ان کو اس میں سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پر سجدے کے معاملے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سجدہ واجب نہیں ہے، احناف کے یہاں یہ ہے کہ سجدہ مانا جاتا ہے اس کو، چونکہ ان پر ایک حالت و کیفیت طاری ہوئی اور اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، تو اس واقعے کو پڑھتے ہوئے ہمارے اوپر بھی وہی کیفیت ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی میں کتنا زیادہ جو ہے اس طرح سے کیا کہتے ہیں یعنی غلطیاں یا کوتاہیاں، زیادتیاں ہوتی ہوں گی، تو اس کیفیت کے ساتھ ہم کو بھی سجدے میں گر جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے۔ اس سلسلے میں آپ کو بحث تفہیم میں مل جائے گی، وہاں دیکھ لیجئے گا۔ میں ایک دوسری بات کہہ رہا تھا جو ذہن سے نکل گئی، آئے گی تو پھر بتائیں گے، آگے چلیے۔
या दाऊद जी क्या ये कहा? जो कल जो हमने ये किया था सही हद वाहिदा कि अगर उसको दुनिया का अजाब मान लिया जाए, तो जो कल था ना जो हमने जी, कल की आयत में हम लोग पढ़े थे कि जिसमें आपने बताया था कि वो दुनिया के अजाब। वमा यंजुरु हाउला इल्ला सहतम वायतम माला मिन फवाक। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ जी जी। तो मौलाना तो फिर इसको क्या, इसमें ये सही हद वाहिदा की क्या तावील करेंगे? बस सहा अजाब के लिए आता है, एक अच्छा, बस मतलब आवाज होगी। हाँ, एक आवाज, एक जोर की आवाज होगी, एक अजाब की शक्ल होगी। तो ये मतलब ये कि भाई यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है कि दुनिया का अजाब आखिरत का अजाब लोगों ने वो लिया है। नफ़ख़े ऊला किसी ने लिया है, किसी ने नफ़ख़े सानिया लिया है, क़यामत का सहा, क़यामत का सूर इसराफिल लिया है, लोगों ने ले सकते हैं। क्योंकि ऊपर से दुनिया के अजाब की बात आ रही है, इस वजह से मैंने उसको उस मफ़हूम को किया। ऊपर कहा ना कि भाई ये इनसे बड़े बड़े लोग थे, ये क्या है, मामूली सा जत्था है। इससे बड़े बड़े लोग जो है, जी बड़ी बड़ी कौमें तबाह हो गई, वो थे जत्थे, सबने जुटलाया मेरा अजाब था हक़ का जी इक़ाब। उसके बाद से फिर आ रहा है माइंज़ुर हाउला इल्ला सहतम वाहिदा। तो गया ये लोग बस अब उस सहा का इंतजार कर रहे हैं। अब वो अजाब की कोई मुतय्यन शक्ल नहीं बताई जा रही है, इसीलिए अच्छा जी बाज लोग जो हैं दुनियावी अजाब की तरफ गए हैं। मैंने शायद बताया होगा कि कम लोग हैं जो दुनिया के अजाब को मानते हैं। मुझे वही ज्यादा मुनासिब लगता है, वैसे आप लोगों को जो मुनासिब लगे। और अभी जो ज़लमा आपने इरशाद फरमाया कि वो तो ये जो राय है कि सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो दूसरे की बात नहीं सुनी, दूसरे फरीक की, तो ये तो खुद वाज़ेह है ना ये बात इसलिए कि वो शख्स जो है, वो शख्स खामोशी से सुन रहा है, एक लफ्ज बोल नहीं रहा, गोया सब तस्लीम कर रहा है। दूसरी बात ये कि दाऊद इस्लाम ने भी कोई फैसला नहीं सुनाया है, अभी नहीं, सिर्फ ज़लमा का जो लफ्ज इस्तेमाल किया। अभी तो सिर्फ तबसरा किया है, फैसला नहीं सुनाया है। और उसकी खामोशी इस बात का सबूत है, या ये बात साबित कर रही है कि वो तस्लीम कर रहा है। मेरे खिलाफ इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मुझे कोई रुकावट नहीं है बोलने पर, और मैं चुप खड़ा हूँ, तो मतलब मैं तस्लीम कर रहा हूँ। लेकिन लोगों ने लिया है इस बात को भी, यानी बाद मुफस्सिरीन ने ये बात कही है कि चूंकि उन्होंने दूसरे फरीक की बात सुने बगैर गोया ये मतलब तबसरा कर दिया, ये उनकी गलती थी और ये उनकी ज्यादती थी। लिया लोगों जो आप कह रहे हैं, ये भर के 99 दुम्बी और एक दुम्बी, इसको सामने रखते हुए ये बात समझ में आती है कि इनको सल्तनत के हर तरह के वसाइल हासिल हैं। कोई गरीब आदमी होगा कोई, और उसके उसके किसी उससे हो सकता है कि तारुस करने की जरूरत पेश आई हो, हालांकि दूसरा मुतबादिल भी होगा, उधर जहन नहीं गया उनका। तो इस पर गोया उनको यानी तंबीह की जा रही है कि ऐसा न करें। लेकिन कितनी गलत गलत बातें इस्राएली किताबों में मौजूद हैं, हैरत होती है कि कैसे इन लोगों ने अपने यानी अपने अंबिया के साथ ऐसा ऐसा मामला किया है।
मौलाना मौदूदी ने भी इस मामले यानी इसमें खुलकर गुफ्तगू की है, लोगों की क्या क्या राय है। अलबत्ता उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने उस तरह कुछ कहा नहीं था, बल्कि उसके इंतकाल के बाद शादी जब कर ली तो लोगों ने उसको गलत तरीके से उसको लिया और उनको गोया बदनाम कर दिया। इसमें बाद लोगों को ये होता है कि हजरत दाऊद के पास 99 बीवियां थीं, हाँ, और एक और बीवी मानकर जो है 100 का आदत पूरा करना चाहते थे। लेकिन ये एक बात बताई जा रही है तो इसमें ये मतलब नहीं है कि वो एक एक चीज को हम फिट करें। मौलाना एक सवाल है जी। 99 में एक और को अगर शामिल कर ले कोई तो हाँ। बजाते खुद ये कोई जुल्म की बात तो है नहीं, ना कोई शरन हराम चीज है, तो इसको भाई जुल्म क्यों आप कर? आप जबरदस्ती उसकी चीज ले रहे हैं, जबरदस्ती उसकी चीज ले रहे हैं, ये जुल्म नहीं है। जबरदस्ती आप एक शख्स से उसकी चीज मांग रहे हैं और ले रहे हैं और उसको अपनी तेज ज़बानी से उसको खामोश कर दे रहे हैं, तो ये जुल्म नहीं है तो क्या है? ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। हाँ, लेकिन बात तो जो दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई वो तो सही मुशाहिदा है क्या? कि जो पार्टनर्स होते अक्सर झगड़ों में, जी जी, वो मतलब तो जो सही बात है, इरशाद फरमाई वो तो सही है, लेकिन वो ये वो बात 100% सही है, लेकिन ये बात कहते हुए उनको ख्याल आया कि इससे मिलता जुलता कोई मामला है जो उनसे सरजद होने वाला है, हाँ हाँ सरजद हुआ चाहता है, ये उनको ख्याल आया। वो क्या चीज थी अल्लाह ताला ने सो बोल रखा है, बोल मोल रखा है, उसको बताया नहीं है। जी जी, जज़ाकल्लाह। मौलाना मौदूदी की तफसीर देख लीजिएगा। तो वक्त तो हो गया है, कल कौन पढ़ेगा? एक हमारे नए दोस्त भी आए, मोहम्मद जी, इरफान साहब, मोहम्मद हैदराबाद इरफान साहब से शामिल हुए हैं। जी, जी, एकेडमी के स्टूडेंट हैं ये। अच्छा, ये नए स्टूडेंट है पुराने? नए हैं गालिबन। तो जिनको तो एकेडमी के औकात, उनको जो है वहाँ के तो औकात दूसरे हैं ना। तो यही बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। आप एकेडमी में रहते हैं या ऑनलाइन तालीम हो रही है आपकी? नहीं, एकेडमी में रहते हैं। जी रहते हैं। तो फिर आप लोगों के खाने पीने का वक्त और दूसरी चीजें मुतासिर होती।
होंगी ना जी हाँ, थोड़ा अलग है। जी। जी हाँ, टाइम जो है नमाज का टाइम होता है। नमाज का वक्त होता है, फिर खाने पीने का भी वक्त होता है, जी कैसे मैनेज करेंगे? इसी वजह से एक साहब और पढ़ रहे थे, इसी वजह से वो आ जाते हैं, नहीं मुझे हो भाई भी सके। हैं अच्छा, जी। वैसे वो जो बगल में मस्जिद है वहाँ नमाज कुछ पहले होती है। जी, फिलहाल जो फलाही चौक पर जो मस्जिद है वहाँ नमाज पहले होती है, लेकिन अब गेट बंद रहता है क्या मुस्तकिल? है, फिलहाल जो है सिर्फ अकेडमी में ही नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद को नहीं जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप अरबी साइड से हैं या अंग्रेजी साइड से हैं? अंग्रेजी सेक्शन ITS से हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। जी जी, ठीक है। अल्लाह ताला आपके जज्बे को कबूल करे। हाँ, तो कल कौन सा आप पढ़ेंगे भाई? गालिब भाई हैं हरियाणा से, उन्होंने पढ़ा नहीं है कभी। गालिब साहब, जी हाँ भाई पढ़िए। इंशाअल्लाह कल ना पढ़ो। हाँ इंशाल्लाह कल गालिब साहब पढ़ेंगे। गालिब ने खालिद। खालिद जी खालिद साहब पढ़ेंगे। जी जी, ठीक है। ठीक है अच्छी बात, इंशाअल्लाह। चलिए, इंशाल्लाह। अस्सलाम सजदा भी वालेकुम। करना है ना सबको, जी सजदा करना है ना। हाँ हाँ, सजदा करना है जी, सजदा करना। अच्छा आपने याद दिलाया। जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। जज़ाकुमुल्लाह।